Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which we are learning right now is amalgamation, absorption and external reconstruction. Students, in last video I've explained you what is the meaning of amalgamation, absorption and external reconstruction. The words are different, the meanings are different, but accounting transactions are same for all the three of them. Chalo, let's read the problem, understand the problem and then starts. This is our first problem, so let's go very slowly and try to understand it. See, amalgamation you have done in SYBCom also, but that was amalgamation of two joint partnership firm. Here we are going to do the amalgamation of two joint stock company. Now see, A Limited and B Limited, carrying on a similar business, decided to amalgamate. For this purpose, a new company, AB Limited, was formed to take over the assets and liability of both the company. Now see, it is taking over the assets and liability of both the company. So this word is very important. It's taking asset and liability of both the companies. दोनों company का assets and liability take over. It is agreed that fully paid up share of ₹100 shall be issued by the new company for the value of net asset of old company. Now see, यहाँ पे जो क्या कह रहा है कि company will take over the assets of both the companies. जो भी net asset का valuation आएगा उसका shares दिया जाएगा उस new company में. Summary balance sheet of A Limited. Now see, A Limited is having equity share of ₹5 50,000 each, 50,000. General reserve, profit and loss, sundry creditors, bills payable, goodwill, land and building, plant and machinery, stock, debtors, फर्नीचर्स एंड फिक्शन, कैश एट बैंक, 81,000 दोनों का बैलेंस है. फिर हमारा लाइबिलिटी आ जाता है. व्हाट इज माय लाइबिलिटी? Yes, now I'll come to the balance sheet of B Limited. B Limited have 800 share of ₹50 each, bank overdraft, sundry creditors, goodwill, land and building, plant and machinery, stock, furniture, debtors, cash, and profit and loss debit side. The company accepted the scheme of revaluation. The company ने revaluation का scheme accept किया. A, to provide reserve for doubtful debt 5% on debtors. See, A का मैंने क्या बोला, डेटर्स के ऊपर मैं RDD करने वाली. तो जिसके ऊपर आपको पता है ना एडजस्टमेंट होता है, हमें वो मार्क करना होता है. सो आई हैव मार्क दैट. फिर क्या बोल रहे हैं, राइट ऑफ ₹400 स्टॉक एंड टू राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी 33.3%. सो स्टॉक के ऊपर भी कुछ है और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी कुछ बोला है. तो हम ये तीनों चीज में हमें एडजस्टमेंट दिए हैं. एडजस्टमेंट यू नो यू हैव टू ऑलवेज मार्क इट डाउन. सो वी हैव मार्क फॉर ए. दिस ए में आपको तीन चीज बोली है. डेटर्स RDD प्रोवाइड करने बोला है, स्टॉक को राइट ऑफ करने बोला है और राइट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3% बोला है. बी लिमिटेड में क्या बोला है, बी लिमिटेड टू एलिमिनेट गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. वो बोल रहा है हमें गुडविल भी नहीं चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दोनों चीज नई कंपनी नहीं ले जाने वाली है. सो दैट मीन्स ये दोनों चीज में से आई नो प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए वो सीधा कहाँ चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में. प्रॉफिट गुडविल को हम रियलाइजेशन में डाल के छोड़ देंगे. राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹100 एंड प्रोवाइड RDD फॉर डेटर्स. सी, बैड डेब्ट्स प्रोवाइड करने बोला और RDD, यानी कि दो एडजस्टमेंट आपको डेटर्स में बोला है. एंड राइट ऑफ ₹1,400 फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. सो यहाँ पे स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट बोला है और एक डेटर्स के लिए एडजस्टमेंट बोला है. हमें दो पार्ट को दो चीज को हमें एडजस्टमेंट बोला है. यस, डेटर्स में एडजस्टमेंट बोला और कहाँ पे एडजस्टमेंट बोला, स्टॉक पे. चलो आगे चलते हैं. You are required to pass the journal entry in the book, journal entry and prepare the ledger in the books of A Limit and B. A Limit और B में दोनों में journal entry भी बोला है, ledger भी बोला है. Giving the effect of about transaction and also pass the journal in the books of AB Limited
while opening the balance and also prepare opening balance sheet of ABC. सब कुछ पूछा इस प्रॉब्लम में. So this problem के अंदर I'm going to go very deeply each and everything they have asked. So will we do it? Now see, जब अब हम देख रहे हैं कि मैं प्लांट एंड मशीन, हम बोल रही कि मैं इसके लिए ये वैल्यू दूंगी वो वैल्यू, that means we are having a net asset method. net asset मतलब हम लोग को नया वैल्यू ऑफ एसेट. तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे. द परचेज कंसिडरेशन विल बी दैट. ओके नाउ सबसे पहले पता है हम लोग गुडविल को ट्रांसफर करते हैं. सो वी विल ट्रांसफर एवरीथिंग. विल मेक अ परचेज कंसिडरेशन. वेयर इज माय परचेज सी, आपको पता है परचेज कंसिडरेशन में आएगा पर्टिकुलर और एसेट्स आएगा. एक लाइन मुझे और एक चाहिए जहाँ पे मैं लिखूंगी ये हमारा एसेट्स है ना. यहाँ पे मैंने रेड से इसलिए किया है, रेड का मतलब है वहाँ पे एडजस्टमेंट है. ओके तो आई विल बी सॉल्विंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ इट. ओके चलो, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. सिर्फ जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है दैट मीन्स दैट विल बी टेकन केयर एज द बुक वैल्यू. उनको हम बुक वैल्यू में ही ले जाएंगे और जहाँ जहाँ पे जिसके बारे में बोला है उसे हम एडजस्टमेंट करेंगे. नाउ सी व्हाट दे सेइंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. नाउ आई हैव कॉपीड योर एवरीथिंग. सो मैं ए लिमिटेड का क्या टर्म्स एंड कंडीशन था, आई थिंक इसको मैं डबल पेज पे ले लेती तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा रीडिंग करने के लिए. यस आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉब्लम. सो व्हेन इट कम्स एंड 2 पेज सो इट विल बी इजी फॉर मी एज अ प्रीव्यू. या सबसे पहले क्या बोला है, टू प्रोवाइड रिजर्व एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स. नाउ सी डेटर्स के ऊपर जब हमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोला जाता है ना बच्चों, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग हियर. अब मैं इसको पहले ब्लैक में कर दूंगी और एक नीचे जो हमारा होगा ना ये टोटल एसेट्स होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस हम लोग लाइबिलिटीज करते हैं. यस यहाँ पे हम लेस लाइबिलिटीज करेंगे. सो लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा RDD. RDD का मतलब है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. आप कुछ इधर पूरा भी लिख सकते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. यस कितना बोला है 5%. सो 12,000 पे 5% बोलो कितना आएगा, 12,000 multiply by 5%. when I'm multiplying 5% it is coming to 600. so ये मेरा आ गया 600, मेरा RDD आ गया. yes so now I'll just clear this thing. yes इसे मैं फिर से नॉर्मल पे ले आऊंगी, नॉर्मल कलर ले आऊंगी. यस क्योंकि ये वाला एडजस्टमेंट मेरा हो गया है. सो एक्चुअली हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इट इज़ वेरी इजियर फॉर मी. हम लोग सीधा कॉपी करते हैं, करेक्ट. सो ये हो गया. अब स्टॉक के बारे में क्या बोला है, इसके बाद बोला है स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ ₹400. स्टॉक जो भी वैल्यू होगा उसमें से 400 माइनस कर देना है तो आई विल बी गेटिंग माई न्यू वैल्यू. तो स्टॉक कितना है मेरा 10,000. सो इट इज 10,000, सॉरी clear the chat, 10,000 माइनस 400. मुझे माइनस करने बोला है, मैंने उसको माइनस किया तो मेरा न्यू वैल्यू आ रहा है 9,600. सो आई विल बी राइटिंग हियर माय न्यू वैल्यू 9,600. अगेन दिस कलर आई विल चेंज. यस चलो, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या बोला है, नेक्स्ट पेज. to write off 33.3 for plant, 33.3% for plant. 33.3 मतलब we take 33.333 plant and machinery. so चलो plant and machinery को write off मतलब depreciation. so my plant and machinery is how much, 24,000. so it is 24,000 multiply by 33.3333. मैंने बोला ना हमेशा ऐसे करने का. so आपका परसेंटेज कितना आ रहा है,
7.999 यानी कि 8,000 आपका डेप्रीसिएशन आ रहा है. सो 24,000 माइनस 8,000 हमने डेप्रीसिएशन माइनस किया. सो मुझे न्यू वैल्यू मिल गया 16,000. सो मेरा प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रही हूँ मैं 16,000 पे. आर यू गेटिंग मी? नाउ आई जस्ट चेंज द कलर बिकॉज मैंने ये एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट मेरे हो गए मैंने कलर चेंज कर दिया. हो गया. अभी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अब मुझे बी लिमिटेड में से मुझे क्या करना है? यस अभी मुझे मेरा दो ही लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर 4,000 बिल पेबल. सी इसने बोला टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बोथ द, वो सब एसेट्स और लाइबिलिटीज ले जा रहे हैं. सो ये खाली क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रह गया. सो आई विल बी राइटिंग या क्रेडिटर्स 4,000 बिल्स पेबल 4,000. सो ये मेरा लेस में चला जाएगा. लेस, सॉरी लेस तो मैंने कर ही दिया है. क्रेडिटर्स 4,000 और दूसरा मेरा है बिल्स पेबल. यस मेरा बिल्स पेबल भी कितना है 4,000. So now I have completed with my purchase consideration of the A limited. Now I'll come to B limited. See B limited में भी यही सब चीज़ें, एक मिनट इसको मैं पहले नॉर्मल पेज पे ले आऊँ ताकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ. नाउ बी लिमिटेड में भी देखो गुडविल है, लेकिन गुडविल के बारे में कुछ बोला है तो वो गुडविल को हम बाद में देख लेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग इज 10,000. लैंड एंड बिल्डिंग इज 10,000. यहाँ से मैं पूरा के पूरा कॉपी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हो सकता है नाम ऊपर नीचे हो. तो लैंड एंड बिल्डिंग है सो वो 10,000 है. लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी इज 16,000. सो आई विल बी राइटिंग प्लांट एंड मशीनरी 16,000. प्लांट एंड मशीनरी इज देयर. आई एम राइटिंग हियर 16,000 क्योंकि ज़रूरी है दोनों कंपनी के एसेट एक जैसे हो. स्टॉक इज 7,500. तो स्टॉक इज 7,500. फिर फर्नीचर्स एंड फिक्सचर इज अगेन 7,500. Furnitures and fixture is 7,500. So furnitures and fixture देखो ऊपर नीचे है ना. तो ये हो सकता है फिगर्स कैन बी अप्स एंड डाउन. यहाँ पे डेटर्स है 7,000. So debtors is 7,000. Cash and bank is 300. एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस इज 5,700. 5,700 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी जाता ही नहीं है. और गुडविल इज 2,000. ओके हम लोग गुडविल को पहले रेड करते हैं क्योंकि गुडविल में भी एडजस्टमेंट है. ओके यू विल रिमेंबर इट. ओके गुडविल इज 2,000 एंड कैश इन हैंड इज 300. Cash is 300. Okay, so I'll be writing goodwill as 2,000. Yes, goodwill as 2,000 and this as 300. Okay, now let's see B company में इन लोगों ने क्या transactions में changes किए हैं. B limited to eliminate goodwill and profit. Eliminate मतलब हमें वो चाहिए ही नहीं. So यहाँ पे goodwill will become 0 because you are not taking away the goodwill. Okay, उसके बाद राइट्स ऑफ बैड डेब्ट्स ₹100 एंड प्रोवाइडेड RDD 5%. पहले तो बैड डेब्ट्स को 1,000 बैड डेब्ट्स प्रोवाइड करने वाला और RDD 5% प्रोवाइड करना. सो डेटर्स इज 7,000. 7,000 में से 1,000 तो चला ही जाएगा. बचा कितना 6,000. 6,000 इंटू 5% दैट इज कमिंग टू
300. So my RDD is coming to 300. ओके तो ये भी मैंने कर दिया. So RDD 300 is. So now what is they saying? Write off stock 1400. So stock has to be written off 1400. So it is 7500. Again you have to clear the calci. 7500 minus 1400, that is coming to 6100. Okay, so here this will come as 6100. Chalo, again we'll change the color. That means we are done with everything now. Yes, now when I see it, I have done with everything. Now only what is left out? Liabilities is left out. चलो liabilities में देखेंगे क्या क्या था. This company had bank overdraft 8000, creditors 8000. So चलो यहाँ पे हमने creditors लिखा था, तो we'll write here 8000. This bills payable was not there for this company. और दूसरा उसका था bank overdraft. So we'll be writing here bank overdraft. Yes, how much was bank overdraft? Bank overdraft AB का नहीं था, A का नहीं था, B का था 8000. Okay, now what are we supposed to do? We are supposed to do total assets and then minus total liability. We are going to add the total assets and then we are going to minus the total liability. We are going to get the okay, then we'll go here. It is total assets चलो अभी टोटल एसेट अभी आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हो. व्हाट इज द टोटल एसेट्स? yes, total asset will be A Limited 5000 plus 17,000 plus 16,000 plus 9,600 plus 12,000 plus 5,000 plus 8,000. That comes to 13 कैसे होगा? 5,000 plus 17,000 plus 16,000 plus 9,600 plus 12,000 plus 5,000 plus 8,000. The total comes to 72,600. So the total comes to 72,600. Now B Limited total 10,000 plus 16,000 plus 6,100 plus 7,000 plus 7,500 plus 300. That comes to 40. अरे क्या मिस्टेक हो गया अगेन टोटलिंग में? Students, actually while doing a B part, one sentence I have missed out while typing. Write off depreciation on plant and machinery by 10%. So there was depreciation on plant and machinery 10%. So this plant and machinery is 16,000. तो 16,000 का 10% कितना आया? 1,600. So 16,000 minus 1,600 आपको मिलेगा 14,400. So this is 14,400. Now I'll do the totaling. ये मेरा टाइपिंग एरर था. क्वेश्चन जब मैं टाइप कर रही थी तो मैं मिस आउट हो गया था. ओके चलो 10,000 प्लस 14,400 प्लस 6,100 प्लस 7,000 प्लस 7,500 प्लस 300. That comes to 40.
बच्चों जब हमने डेटर्स माइनस किया था, बैड डेट माइनस किया था, तो ये 6000 आ जाएगा. ओके, तो अगेन विल डू द टोटलिंग. 10,000 plus 14,400 plus 6,100 plus 6,000 plus 7,500 plus 300. Now see debtors के अंदर क्या था? Out of 7,000, 1,000 was RDD, 1,000 was bad debts and 5% was RD. तो देखो मैंने 5% RDD बराबर निकाला था. But what mistake I did that time? एक मिस्टेक मैंने ये किया कि आई हैड नॉट डन द टोटलिंग, और मतलब मैंने यहाँ पे बेड डेप्स का चेंजेस नहीं किया. सो दिस इज माय टोटल 17. दिस इज टोटल. नाउ व्हेन आई हैव डन आरडीडी, तो अब ये टोटल लाइबिलिटीज कितना हो रहा है मेरा? सो या आई विल गेट माय टोटल लाइबिलिटीज. टोटल लाइबिलिटीज. ना लाइबिलिटीज टोटल करेंगे तो व्हाट विल बी माय लाइबिलिटीज टोटल? यस, टोटल लाइबिलिटी देखो कितना है? 4,000 plus 4,000, that is coming to 8,000. 8,000 plus 600, it is 8,600. तो बहुत सिंपल है. 8 2 जा 16, 16 plus 300 is 16,300. So this is my total liability. Okay, so this is my total liability. Now what is my purchase consideration? So purchase, that is, what do you mean by purchase? The purchase consideration is the value on which the company is purchased. So your purchase what is purchase consideration? The purchase consideration is equal to assets minus liabilities. Okay, asset minus liability. So my asset is how much? I'll just change the color because so my purchase consideration A limited is 72,600 minus 8,600. So 72,600 minus 8,600. So A limited, AB limited will purchase A limited for 64,000. Okay, and B limited will be 44,300 minus 16,300. So you'll be purchasing B limited for 28,000. So your purchase consideration here will be 64,000 and here it will be 28,000. Okay, now let's see what they are giving you as a price. Yes, आपको selling price क्या दे रहे हैं? Let's see to it. What they are giving you as a price. आपको बेचने पे आपको क्या मिलता है? See, it is agreed that the fully paid up share of rupees 100 shall be issued by the new company for the valuation of net asset. आपको 100 rupees per share मिल रहा है. So यहाँ पे what will happen? This people will get 640 shares. This person will get 280 shares. So this will get 280 shares. Share of rupees 100 each. Share of rupees 100 each. Okay, equity share of rupees 100 each. You can write that because the company is giving it this many shares. Equity share of rupees 100 each in AB Limited. Okay, this is the way you are going to have your purchase consideration. Okay students, ये बहुत important है.
अगर आपका परचेज कंसिडरेशन रॉन्ग होता है, सो योर फुल प्रॉब्लम इज रॉन्ग, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन परचेज कंसिडरेशन। नाउ आप लोग इसका टोटलिंग कर सकते हैं। ये टोटलिंग इसलिए करना है ताकि आपको पता चले व्हेन द टोटलिंग विल बी यूज। मैं आपको बाद में बताऊंगी टोटलिंग कहाँ पे यूज होगा। लेट्स डू द टोटलिंग फास्ट। दिया हो रहा है 5000, यहाँ पे आएगा 10,000 प्लस 17,000 इज 27,000। 16 प्लस 14,400 कितना होगा? 16,000 प्लस 14,400, that will come to 30,400. That is coming to 30,400. 9,600, 9,600 plus 6,100, that is coming to 15,700. 15,700. 16 plus 12 is 18,000. 7 plus 12 is 12,500. This comes to 8,300. This comes to 900. This comes to 8 4 plus 4 sorry 8 plus 4 4,000 is 12,000. यहाँ पे हमें टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टोटल कितना टोटल डेटर्स कंपनी के पास आ रहा है, कितना क्रेडिटर्स आ रहा है, कितना लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है, हमें वही देखना है। और यहाँ दोनों तो सिंगल सिंगल है, तो 4,000 प्लस 0 इज 4,000, 8,000 plus 0 is 8,000. So this is the way your purchase consideration will look. Students, please have a look at it. आपका purchase consideration ऐसे ही दिखना चाहिए ताकि there is no problem inside it. ये आपका इसी तरह से दिखेगा in the examination और इसका marks है। Without purchase consideration आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके चलो लेट्स, अब हम लोगों को फर्स्ट पार्ट करना है। हमें प्रॉब्लम में क्या बोला है, सी हमें प्रॉब्लम में क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द लेजर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो चलो हम पहले ए लिमिटेड का जर्नल बनाते हैं और लेजर बनाते हैं। सबसे पहले आपको मैंने या प्रेजेंटेशन के अंदर स्टेप सिखाया था। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला है मैंने, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो व्हाट इज द एंट्री, realization account debit, realization account debit. First entry is transfer all the assets to realization account. So realization account debit to various assets account. Now this will be transfer at the book value. ओके सो यहाँ से हमें वो बुक वैल्यू का अमाउंट मिलेगा। कौन सा अमाउंट है, देखो हमें गुडविल 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 17,000, हम दो दो याद करते हुए करते जाएंगे। गुडविल टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। टू गुडविल अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू गुडविल टू लैंड एंड बिल्डिंग, यू हैव टू राइट ऑल द एसेट्स नेम। उसके बाद आपका है प्लांट एंड मनी स्टॉक डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स, यस। सो टू, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा बच्चों। टू टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स
टू डेटर्स अकाउंट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको दिया था ना स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सी फॉर मी द टाइपिंग वाज टेकिंग अ वेरी लॉट टाइम, so I have done the typing and now I'm going to only explain you the journal entries. Now see, what was the journal entry? Realization account debit to all assets account. Now see, I have transferred all the assets from here: goodwill, land and building, plant and machinery, stock, debtors, दैट टू एट अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया मैंने वो। देखो इसके यहाँ पे कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं था, इसलिए इसका टोटल 81,000 था। सो मैंने यहाँ पे भी वही किया है। गुडविल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांटेज मनी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, फिक्सर, कैश, टोटल आ गया आपका 81,000 अपना एसेट ट्रांसफर किया। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला था? ट्रांसफर ऑल दी लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी दो ही है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो आई हैव डन दैट। व्हाट आई हैव डन? यस, sundry creditors account debit, bills payable account debit to realization account. Creditors was 4,000, bills payable was 4,000, total transfer to realization was 8,000. After that, the third step is transfer equity share to equity share capital account. So what was the equity share capital? It was 50,000. So your journal entry will be equity share capital account debit to equity shareholders account. That comes to 50,000. Fourth step was transferring all the accumulated profit. The accumulated profit is profit and loss account and general reserve. That is 23,000. I am transferring that. That is general reserve account debit, profit and loss account debit to equity shareholders account. So this was a normal thing जो आपने अभी तक SY BCom में भी स्टडीज किया था। क्या स्टडी किया था? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने ऑल द एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैंने ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। फिर इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर किया। फिर जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व्स में मैंने ट्रांसफर किया। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी का आएगा AB लिमिटेड अकाउंट। दिस इज परचेज कंसिडरेशन एंट्री। ये कौन सा एंट्री है? दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन एंट्री, PC। तो देखो हमारा इस कंपनी का PC कितना था? 64,000। एम आई करेक्ट? सो यहाँ पे आपका आएगा परचेज का AB लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो दैट इज कमिंग टू 64,000। ये कंपनी हमने 64,000 में खरीदी। ओके, इसके अगेंस्ट में वो कंपनी ने आपको क्या दिया वो भी हमने PC में लिखा है। हमें इक्विटी शेयर मिला है 64,000 का। सो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्विटी शेयर इन AB लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू AB लिमिटेड 64,000। नाउ ये हो गया आपका 64,000 का आपने शेयर्स नई कंपनी में मिला। ओके, दिस आर ऑल द एंट्रीज वी हैव डन इट। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट? नाउ यू हैव टू रिमूव रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर दैट टू equity shareholder, and last is your settlement of equity shareholders account. Now for removing a realization account हमें क्या करना पड़ेगा? हमें realization account बनाना पड़ेगा। देखो मैंने बनाया all assets on the debit side, all liabilities on the credit side। यानी कि मैंने फर्स्ट वाला एंट्री जो था मैंने उसकी एंट्री पास कर दी। देखो रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स अकाउंट, देखो मैंने वही किया, रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स अकाउंट। सेकेंड हमारी एंट्री थी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, वो मैंने ट्रांसफर किया। उसके बाद आपने क्या किया है? यू हैव ट्रांसफर, तो मैंने यहाँ किया बाय इक्विटी शेयर 50 बाय जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ अब हमारे पास हमारी ये जो नॉर्मल एंट्री थी, अब मैंने क्या वर्क नहीं किया है? ये वाला PC का AB limited account debit to realization account. So in realization it will come as by AB limited account। हम लोगों ने AB से कंपनी खरीदा है। AB limited account कितने का खरीदा? 64,000। and then you're going to make one account called AB limited account. So that is new company account. It will come as to realization account।
आई एम गेटिंग यू अगेन गोइंग टू राइट योर रियलाइजेशन अकाउंट. कितने में खरीदा हमने? 64,000. ओके, ये जर्नल एंट्री भी मैंने पास कर ली. उसके बाद सॉरी, वेर इज माई जर्नल एंट्री, या उसके बाद आ रहा है इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ए बी लिमिटेड अकाउंट. सो ए बी लिमिटेड में आएगा, क्या आएगा? बाय इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट. इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट. यस, आपने कितने का शेयर्स दिया ए बी लिमिटेड में? यू हैव गिवन द शेयर्स ऑफ रुपीज 64,000. सो दैट कम्स टू 64,000. और ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है. आर यू गेटिंग मी? यस, सो दिस अकाउंट गेट क्लोज योर 64,000. अब हमारा ऑलमोस्ट ऑल द एंट्रीज आर डन. यस, सो दिस अकाउंट गेट क्लोज. तो ये देखो, मैं हमेशा, मेरी आदत है, वेन एवर आई क्लोज अकाउंट आई मेक इट विद रेड. ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया. उसके बाद मैं क्लोज करूंगी रियलाइजेशन अकाउंट. ना यहाँ पे 81,000, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 64,000 प्लस 8,000, दैट कम्स टू 72,000. सो मेरा 81,000 यहाँ पे बड़ा है. सो ये आ जाएगा 81,000. यहाँ पे भी आ जाएगा 81,000. मेरा डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, दैट मीन्स आई एम सफरिंग अ लॉस. कितने का लॉस है? 81,000 माइनस किया. सो आई एम गेटिंग अ लॉस ऑफ रुपीज 9,000. आई एम गेटिंग अ लॉस ऑफ रुपीज 9,000. So this comes to 9,000. This 9,000 will go to whom? By equity shareholders account. I'll write in a shorter form, by equity shareholders account. ये हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा 9,000. और इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन. इधर बाय था तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, कितने का लॉस हो गया मुझे? 9,000 का. चलो, अभी उसकी जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है. सो जर्नल एंट्री क्या आ रही है आपकी? लॉस की जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या एंट्री आ रही है? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट to realization account. Okay, so it is equity shareholder account debit to realization account. Okay, कितने का लॉस हो गया मुझे? 9,000 रुपीज. आई हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज. ये इस तरीके से आप करोगे. नाउ आई थिंक मैंने ए लिमिटेड किया, बी लिमिटेड का एंट्री आप लोग खुद भी कर सकते हो, करेक्ट ना? सो देखो, अब मैं अगर देखती हूँ तो मैं बैक से जाती हूँ. मेरा न्यू कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया है. मेरा इक्विटी शेयर अकाउंट बाकी है और रियलाइजेशन मैंने क्लोज किया. सो ये कर रही हूँ तो 50 प्लस 20 इज 70, 70 प्लस 3 इज 73,000. सो यहाँ पे भी आ जाएगा 73,000. ओके, अब आपको 73,000 माइनस 9,000, हाउ मच इज लेफ्ट आउट? देखो, एग्जैक्टली 64,000 बचेगा, बिकॉज आपकी न्यू कंपनी में आपको यही मिला है. तो आपको आएगा टू इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड. आपको इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड मिला है. इस तरीके से आपने अपना अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज किया है. ओके, अकाउंट. Yes, so your least and not the last, your entry is equity shareholders account debit. आपकी लास्ट जर्नल एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट. सो योर लास्ट जर्नल एंट्री इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट.
टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड अकाउंट आपको मिला है 64,000। आपको मिला है, एक जीरो ज़्यादा डाल दिया मैंने, आपको मिला है 64,000। आपको मिला है 64,000। सो दिस इज द वे you are going to solve your account. See, I have done a journal entries in AB Limited. अगर मैं B Limited का भी करती हूँ तो everything problems become very big. Now you will do the journal entry of B Limited. So in B Limited it will be same. First transfer all the asset to realization account, all the liabilities to realization account, then equity share to equity share. ए बी लिमिटेड के अंदर आप देखोगे, बी लिमिटेड के अंदर आप देख रहे हो, सो बी लिमिटेड के अंदर व्हेन यू सी इट, यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट बट यू आर हैविंग अ लॉस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है. सो आपका ये जर्नल एंट्री यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चेंज हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. परचेज कंसिडरेशन का सेम एंट्री आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी. फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालोगे आप. दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व द बी लिमिटेड का प्रॉब्लम. ओके, यस. सो देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, अगर मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठूंगी तो पता नहीं मुझे कितने वीडियोस लग जाएंगे. इसीलिए ए लिमिटेड का मैंने बना लिया, बी लिमिटेड का आप लोग बना लो. उसके बाद आपको क्या क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द लेजर. तो देखो ए का मैंने जर्नल एंट्री कर दिया, लेजर अकाउंट कर दिया, ए का मैंने कर दिया, बी का. और अब ऑल्सो बोला है पास द जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड. सो अभी मैं ए बी लिमिटेड के अंदर आपकी जर्नल एंट्री पास करती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स पास द जर्नल एंट्री इन ए बी लिमिटेड, यानी कि न्यू कंपनी अकाउंट के अंदर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. Let me pass on the journal entry in the books of new company. Now students, we have completed the first part of it. Now second part is give the journal entry in the books of AB Limited. See, AB Limited is a new company and balance sheet, opening balance sheet. For passing a journal entry of AB Limited, we will take care of this thing. You know, हम लोग यही सब अमाउंट्स को पिकअप करेंगे. सो सबसे पहले हमारा अमाउंट है AB लिमिटेड का है. First is AB purchase किया, all the assets are coming up. So your first journal entry will be goodwill account debit, land and building account debit, plant and machinery account debit, stock account debit, furnitures and fixtures account debit, cash and bank account debit. Okay, you will be writing all this thing here. So चलो हम लोग सबसे पहले हमारा पहला journal entry पास करते हैं. Journal entry number 1, purchasing of a new company. I'll be writing here. Okay. Goodwill account debit, goodwill account debit. Then you have land and building. मैं short form लिखूंगी, आप लोग full form लिखिएगा. Land and building account debit. Please students, you are going to write a full form. I am going only suppose can use the short form. Then plant and machinery account debit, furniture and fittings account debit, stock account debit, debtors account debit, and last but not the least, cash account debit. Okay students, ये आप just you know it has to be somewhere little near to this LF column so that it goes on very nicely.
ये एक साथ में लिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। इन अकाउंट्स प्रेजेंटेशन ओनली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आपका राइटिंग एग्जाम आया तो वी विल बी चेकिंग द पेपर ऑनलाइन। सो ऑनलाइन के अंदर जितने अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन किया होगा वो अच्छा दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? चलो, टू क्या क्या लिया उसने वहां पे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एक्चुअली ये दोनों के बीच में ना एक लाइन छोड़ देना चाहिए। वो क्यों छोड़ना है? आई विल बी टेलिंग यू वेरी सून। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू टू RDD अकाउंट टू RDD अकाउंट एंड टू आपने कौन सी कंपनी खरीदी है हम पहले अकाउंट पास करेंगे टू AB लिमिटेड अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट। ओके, नाउ यू राइट। नाउ सी यहाँ पे जो आप फिगर्स डालोगे स्टूडेंट, रिमेंबर इट, द फिगर्स विल बी फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन। इट हैज टू बी द न्यू वैल्यू, नॉट द ओल्ड वैल्यू। रियलाइजेशन में हम ओल्ड वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे हम लोग न्यू वैल्यू डालते हैं। सो दिस इज 5,000, दिस इज 17,000, this is 16,000, this is 5,000, this is 9,600, this is 12,000 and this is 8,000. ओके, क्रेडिटर्स हम लोगों ने उसी बुक वैल्यू पे लिया था। क्रेडिटर्स was 4,000, bills payable was again 4,000 और RDD was 600 और हमने लिक्विडेटर यानी कि ये कंपनी हमने कितने में खरीदा? 64,000। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है मतलब आपको ये टोटल करना है। ये वाला टोटल तो आपको पता है कितना है, ये टोटल आपको मालूम है कितना है, बिकॉज मैंने परचेज कंसिडरेशन में ये टोटल किया। इट इज 76,200। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा है, ये तीनों का टोटल। ओके, नाउ वी विल सी टू इट, ये चारों का टोटल कितना आ रहा है वो हमें पता है। 76,200 उसका टोटल था, तो ये आ रहा है हमारा 4,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 64,000। सो ये भी आ रहा है हमारा 72,600। दैट मीन्स नाइदर देर इज अ प्रॉफिट नॉर देर इज अ लॉस। सो ये ऐसे ही रहेगा। हमने एक लाइन छोड़ दी है, नॉट एन प्रॉब्लम फॉर इट। पहली एंट्री आएगी ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स। उसके बाद आएगा जब हम पेमेंट करेंगे, तो हम पेमेंट किसको करेंगे? हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हम क्या दे रहे हैं इन लोगों को? Yes, what are we giving? We are giving equity share. Am I correct? So liquidator of A limited account debit to equity share capital account. Equity share क्या हो रहा है आज? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है? हमने इसको कितना दिया? 64,000। सो ये कंपनी का भी हो जाएगा 64,000, ये भी हो जाएगा 64,000। The same way you are going to do the journal entry of B लिमिटेड का। आर यू गेटिंग इट? द सेम वे दो एंट्री आएगा, एक आता है परचेज का, दूसरा आता है ये। तो एक्चुअली मैं कॉपी करती हूँ, मेरे हिसाब से ज़्यादातर मेरे जितना मुझे पता है ऑलमोस्ट ये सब सेम ही था।
यस, हमारी एसेट्स ऑलमोस्ट सेम थी, करेक्ट। देखो हम लोगों को, हम देख लेते हैं, हम नाम पढ़ते पढ़ते विल पुट द, यहाँ पे गुडविल नहीं था तो हम गुडविल निकाल देंगे, बस इस कंपनी के गुडविल को उन्होंने नहीं टेक ओवर किया था, करेक्ट। सो यहाँ पे गुडविल नहीं आएगा, एम आई करेक्ट। मुझे अच्छी से याद है, देखो परचेज कंसिडरेशन में गुडविल वॉज 0, ओके। नाउ यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अगेन 10,000, land and building was 10,000, plant and machinery was 14,400, furnitures and fixture was 7,500, stock was 8,100. See, I'm just copying it from here, हाँ students, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं जो परचेज कंसिडरेशन में मेरा वैल्यू था, आई एम कॉपिंग दैट ओनली। सी हियर इट इज, देखो 10,000, 14, 6,000, plant and machinery was, no, stock was 6,100, debtors is 6,000, and that is 5,000. I think मैंने stock गलत लिख दिया, it is not 8,000, it is 6,000, 6,100, 6,100, debtors was 6,000, debtors was 6,000, and cash was, here the cash was only 300 rupees, correct। 10,000, 14,000, 7,000, 6,000, yeah, यहाँ creditors was 8,000, and we didn't have bills payable, we had bank overdraft, am I correct? Here we had bank overdraft, yes, so bank overdraft was again 8,000, RDD was 300, and what was the new किसको, liquidator of, यहाँ पे A limited के जगह it will come as B limited. See, all the entries are almost the same. B limited, हमने ये कंपनी कितने में बेची थी, B limited 28,000, देख रहा है आपको यहाँ पे 28,000, so यहाँ पे B limited will come as 28,000. So it was 28,000. Again we will do the totaling, देखते हैं हम क्या आ रहा है totaling. Where is my calculator gone? So that is coming to 28,000 plus 300 plus 8,000 plus 8,000, that is coming to 44,300. यहाँ पे देख लो हमारा परचेज इसका टोटल कितना था, 44,300. सो अगेन देर इज नो डिफरेंस, तो हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर हमारा सेकेंड एंट्री आएगा लिक्विडेटर ऑफ, सेम यही आएगा सेकेंड वाला एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसको भी हमने यही चीज दिया है। तो फोर्थ, सी न्यू कंपनी में हमेशा सिर्फ यही एंट्रीज आती है अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ और चेंजेस किया होगा। सो दिस इज लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने में खरीदा था हमने ये कंपनी, 28,000 में। yes, we have purchased this company for 28,000. okay students, now see when you see to it, आपका ये एंट्री ऐसे ही आएगा। फर्स्ट आपने ऑल एसेट्स परचेज, देन लिक्विडेटर, देन ऑल एसेट सोल्ड एंड लिक्विडेटर अकाउंट, इस तरीके से आएगा ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट विल कम दिस वे ना। ये चीज के लिए मैंने आपको पता है ये टोटलिंग वाला पार्ट करवाया था, ये जो टोटलिंग वाला पार्ट था, सी टोटल इक्विटी शेयर हम कितना आ रहा है ये हमें करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया था। सो इट इज 64,000 प्लस 28,000, दैट इज कमिंग टू 92,000। तो हमारा इक्विटी शेयर कितना है, 92,000। सो यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 92,000। आर यू गेटिंग मी? यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ न्यू कंपनी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हमने कुछ भी लिया नहीं है,
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास स्टेट पेएबल्स है, दैट इज योर बिल रिसीवेबल हमने एक लिया है, नहीं ट्रेड पेएबल है, बिल रिसीवेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमारा कितना है हम वो देखेंगे। सो हम लोग जरा यहाँ पे लाइबिलिटी पार्ट पे आ जाते हैं। यस, सो दिस इज 12 प्लस 4 16,000। सो हमारा ट्रेड पेएबल्स विल बी 16,000। ये आपको मैंने सिखाया था, वर्किंग नोट बनाओगे। शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी इज माई बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज कमिंग टू 8,000। There is no other liabilities, nothing. So now I'll be going to do the totaling of it. So this, what is the totaling of this? Let's see. So totaling will be 92,000 plus 8,000 plus 16,000. That comes to 1,16,000. So this is coming to 1,16,000. Okay. So my liabilities total is 1,16,000. Now we'll come for the asset part. इंटेंजिबल एसेट में हमारे पास एक गुडविल है, तो गुडविल का वैल्यू वॉज 5,000, हमने ये लिखा। उसके बाद हमारा ये जितनी भी एसेट्स है, ये जितने भी एसेट है बच्चों, इसको आप एक वर्किंग नोट बनाओगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। तो मेरा टोटल होगा लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास 27,000 है, फर्नीचर एंड इज 34,000, स्टॉक ने डेटर्स ने फर्नीचर्स एंड फिक्सचर 12,500। ये तीनों को आप बनाओगे। सो मेरे पास टोटल इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स है कितना है 69,900। सो टोटल टेंजिबल विल बी 69,900। 5,000 करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो आई राइट हियर 0, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं जो मैं टेक ओवर करूंगी। इन्वेंट्रीज, यस हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। देखो स्टॉक कितना है 15,700। सो ऑल राइट हियर, इसलिए मैंने वो टोटलिंग किया था, देखो मेरे लिए कितना इजी हो गया 15,700। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स है। नाउ डेटर्स का कैसे होता है पता है ना आपको, दिस see the trade receivable will be debtors is 18,000, from that 900 will be minus, that will come to 17,100. Yes, so your trade receivable is 17,100. Cash and cash equivalent, you are having only a cash balance, that is 8,300. See here when we are having a totaling, we are directly copying it, that is coming to 8,300. Short term loan, we don't have any short term loan, we don't have any current assets. Now this again will do the totaling, and the totaling should tally with the liability totaling, so then only will be correct. So चलो totaling करेंगे, 16,900 plus 5,000 plus 15,700 plus 17,100 plus 8,300. See, that is coming to 1,16,600. So that is again coming to 1,16,000. That means we have done the balance sheet perfectly correct. Now बच्चों जहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि you are supposed to make a note on it, and that you all know it very well. Now say this is like this way. Shareholders का इतना था, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था, लाइबिलिटी नहीं था, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी था ये आपका 1,16,000, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट में इन्वेंट्री था, स्टॉक था, कैश था एंड एवरीथिंग। सी दोनों टोटल्स आर टेलिंग, सो एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके चलो थैंक यू। दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई नो, बट यू जस्ट गो थ्रू इट वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली, because the chapter is easy but the wordings are very very long, so it will take time. A division का मैंने कर दिया था, B लिमिटेड का आप लोग करोगे। ओके चलो टेक केयर, बाय।